Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to teach you a tense, and in tense we will discuss the present perfect tense. So in our previous video, we had seen the simple present tense or present continuous tense, and now we'll see the present perfect tense. So what is present perfect tense? Or in this particular video we will see what do we mean by present perfect tense and where do we use this tense and the structure of the tense and the sentences of this particular tense. Alright, let's start. Present perfect tense, and this tense basically it is used or it is used to indicate a link between the present and the past clearly. So present और past में जो link describe करता है, it's called the present perfect tense. Look at here. The present perfect tense is used to describe action that begin in the past and continues into the present or has just been completed. Present perfect tense एक ऐसा tense है जो हमारे past के action मतलब कोई action जो past में start हुआ हो but वो present में continue हो और अभी प्रेजेंट में ही वो क्या हुआ हो, किसी टाइम में वो कंटिन्यू हो और प्रेजेंट में ही वो कंप्लीट हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दैट्स व्हाई वी से कि इट्स यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट और पास्ट. क्लियरली क्लियर? सो सी द एग्जांपल. आई हैव प्लेड, राइट? सो आई हैव प्लेड, या ये कह रहा है कि मैं अभी खेला हूँ, ठीक है, खेल चुका हूँ. तो ये काम वो जस्ट मतलब पास्ट में वो कभी उसने खेलना स्टार्ट किया होगा बट वो प्रेजेंट में किसी टाइम में उसका प्रेजेंट में ये काम क्या हुआ, कंटिन्यू भी हुआ होगा और इसी प्रेजेंट में वो खेल चुका है, मतलब वो रिसेंटली खेल चुका है. ही और शी हैज प्लेड. क्लियरली? सो आई के साथ हमने हैव का यूज किया एंड ही और शी के साथ हमने हैज का यूज किया. अब जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे. ऑलराइट, now see the structure of this particular tense. So as you all know, in this tense we use two verbs, two helping verbs, has and had. So in has and had, so in present continuous tense we use is, am, are as a helping verb, okay, but in this tense we use has or had. So has is always used with singular subject and have is always used with plural subject. Alright, so remember this thing, has used with singular and have used with plural. I के साथ भी have लगेगा, I के साथ. I वैसे तो singular होता है but उसके साथ हमेशा जो भी प्लूरल्स के रूल्स वगैरह होते हैं, जो भी हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, हम आई के साथ भी वही यूज करते हैं. जैसे आई के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज किया था, बट इन दिस टेंस वी यूज हैव विद द आई. क्लियर? तो सी, अ प्रेजेंट perfect tense is a verb form that express certain actions that taken place for once or more than once just a few moments ago. एक ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम पहले हुआ हो, राइट, कुछ मोमेंट पहले स्टार्ट हुआ हो और वो अभी जस्ट खत्म हुआ हो. क्लियर? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब ये स्टार्ट हुआ अभी कुछ मिनट्स पहले स्टार्ट हुआ, राइट, और अब ये इसी प्रेजेंट में हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, जब भी तो वो परफेक्ट होता है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका होता है और प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहलाता है. क्लियर? सो प्लस साइन इज पॉजिटिव. So many times I told you plus is positive and minus is negative and question mark sign is interrogative. Clear? So positive tense में आप देखिए, subject plus has, have or has plus third form of the verb plus object. Remember one thing, जितने भी present tense हैं, ठीक है, whether it is present perfect tense, sorry, so whether it is present perfect tense or past perfect or the future perfect, we always use third form of the verb in perfect tenses. Clear? So in present perfect tense, third form of the verb is used here. So subject, has and have, and third form of the verb is used here. So if our subject is singular, then we use has. If our subject is plural, then we will use have.
Clear? So see the example. He has completed the mission. So he is subject, has is helping verb because he is a singular subject. That's why we put here has. Okay, so he has complete. Complete is the root form of the verb and अब उसको थर्ड फॉर्म में करेंगे तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म ईडी लग के इसको कंप्लीटेड करेंगे. क्लियर? सो ही हैज कंप्लीटेड द मिशन. द मिशन मींस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट अप इज negative. Subject has and have plus not, third form of the verb, then object. He has, इसमें सिर्फ एक not का हम यूज करेंगे. क्लियर? नेगेटिव बनाना है. क्लियर? He has not completed the mission. Suppose instead of he we use here they. So they के साथ हम क्या यूज करेंगे? have. और I के साथ भी हम have, we के साथ भी हम have का यूज करेंगे. क्लियर? So he has not completed the mission. The last one is interrogative. Has have. मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है आप जो उसको सबसे पहले पुट कर दीजिए. तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क. ऑलवेज पुट द क्वेश्चन मार्क इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्लियर? सो हैज ही कंप्लीटेड द मिशन. अब ही है दैट्स व्हाई हैज लगा. अब अगर ही नहीं होता तो दे होता तो हैव दे कंप्लीटेड द मिशन. कुछ इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता. Clear? Now see the present perfect tense positive form और negative form. अब कुछ positive form और negative form भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Positive में subject has है, third form of the verb he, she, it. Third person singular है तो in third person singular के साथ हमने हमेशा क्या यूज किया? Has. Clear है? He, she, it के साथ और कुछ name के साथ हम किसका यूज करेंगे? Has का यूज करेंगे. So has plus started, third form of the verb. And I, you, we, you, they plus have. इनके साथ हम have का यूज करेंगे. Started means rest of the sentence. Now see the negative form also. Subject has and have not plus third form of the verb. He, she, it has not, hasn't. Hasn't is a short form. Okay. Remember hasn't क्या है हमारे यहाँ पे? Short form. Clear? I, you, we, you, they के साथ have not और haven't and started. So I have done it, they have done it, but he has done it. Clear? I have not done it or I haven't done it and he has not done it or he hasn't done it. Alright? ये एग्जाम्पल दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. Now see the question form means interrogative sentences. So has or have, we always use has or have to form a question. So has she started, has he started, has it started. Have I started, have you started, have we started, have you started or have they started. So you have done it, she has done it. ये एक example है तो you have done it. So have you done it? Question mark. So has she done it. Clear? You है that's why you put here have. Because you is this plural and the subject and has she is the singular, so we put here has. So you second or third person भी है, first or second person भी है. Now the present perfect tense, we form the present perfect tense with have, has, past participle. जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट आप इसको देख लीजिए. I, you, we, they के साथ have, eaten, eat. देखो अब मैं कुछ आपको फर्स्ट फॉर्म 3 फॉर्म्स होती है वर्ब्स की. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? ईट. क्लियर? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? एट. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? ईटन. क्लियर? सो ईट, एट, ईटन. सो इन परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज third form of the verb. That's why we put here eaten. Clear? So he, she, it, John. John name है. John के साथ भी आप has का यूज करेंगे. Have का name के साथ भी has का यूज करेंगे. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. So has eaten an apple. Now the present perfect tense. ये वापस से एक बार चीजें आ गई हैं. So I have tried sushi. I haven't tried sushi.
हैव यू ट्राइड शूज, ठीक है। शूजी एज अ डिश, एज अ फूड आइटम, क्लियर क्यूजीन है कहीं की, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। नाउ द यूसेज, अब कहाँ कहाँ हम इनका यूज कर सकते हैं, वेयर डू वी यूज दिस टेंस, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो here are the usage and here, so here are the usage and example, clear? Let's see. To express things you have done in your life, कोई भी थिंग जो आप अपने लाइफ में कर चुके हो, राइट। शी हैज नेवर स्टडीड जापानीज, उसने कभी भी जापानीज नहीं पढ़ी है, मतलब वो पास्ट में भी नहीं पढ़ी है और उसने अभी भी नहीं पढ़ी है, ठीक। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, बहुत बार कोई चीज आप कर चुके हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर, मतलब कितने टाइम्स तुम उसे बुला चुके हो, राइट। मतलब पास्ट में भी ये काम कर रहे थे हम, काफी देर से उसको बुला रहे थे, और अभी प्रेजेंट में भी ये काम हम कर चुके हैं। तो somebody asked his or her कि how many times have you tried to call her? To describe recently completed action which are important now. अब describe करने के लिए कोई action जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जस्ट कंप्लीट हुआ हो, आई हैव सम बैड न्यूज, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, राइट, कि उसने जॉब खो दी थी कुछ टाइम पहले और वो अभी बोल रहा है कि जस्ट मैंने जॉब खो दी, और किसी को बोल रहा है कि आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट आर स्टिल ट्रू, कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी ट्रू हो, राइट। आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 or 5 years, मतलब मैं जेम्स को 4 or 5 years मतलब 5 साल पहले से जानता हूँ और अभी भी जानता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे अभी भी वो नोन में है, क्लियर। देयर आर सम अदर यूसेज टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, शी हैज स्टडीड जापानीज, ओके। सो to express situation that started in the past are still true, to describe unfinished action, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जेम्स वाला। to describe unfinished action और situation, किसी भी unfinished action और situation को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक, मतलब ये हाफ बुक मैंने पढ़ ली, पहले से स्टार्ट करती है और मैं अभी पढ़ चुका हूँ, हाफ ऑफ द बुक पढ़ चुका हूँ, क्लियर। पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी कंप्लीट हुआ है। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, प्रेजेंट का कोई रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए भी वी कैन यूज दिस टेंस। जॉन हैज मिस्ड द बस सो ही विल बी लेट, जॉन की बस आई होगी, वो लेट हो गई थी पास्ट में, बट उसका ये एक्शन उसके प्रेजेंट जो है, मतलब वो लेट हो जाएगा, उसके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, क्लियर। सो नाउ सी सम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन वेयर डू वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कुछ अलग अलग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, वो भी देख लीजिए। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, सम एक्शन व्हिच इज स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड दे आर स्टिल continuing, right? Like she has worked in the bank for 5 years. मतलब वो जो भी गर्ल थी वो क्या करती थी, बैंक में 5 साल से तो काम कर रही है, ठीक है, करती थी, मतलब उसको अपने पास्ट में ही काम शुरू कर दिया था और वो अभी भी बैंक में काम कर रही है, यानी प्रेजेंट में भी वो काम उसका चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो उस टाइम में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में भी वो काम बिल्कुल कंटिन्यू है, तो शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years. Now when the time period referred to has not finished, कोई टाइम पीरियड जो फिनिश नहीं हुआ, I have worked hard this month, मतलब this month, ये मंथ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, देन ही से कि मैं इस पर्टिकुलर मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मतलब वो काम कर चुका है, पास्ट में उसने स्टार्ट किया होगा ये काम करना और प्रेजेंट में उसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब इस काम में बहुत वो उसने हार्ड वर्क किया है। वी हैव सीन हर टुडे, उसको हमने आज देखा है, मतलब पहले वो देख चुका है और अभी प्रेजेंट में बोल रहा है उसको हम देख चुके हैं, क्लियर। एक्शन रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट और नाउ, कोई एक्शन जो अनस्पेसिफाइड हो और पास्ट और अभी के बारे में बात कर रहा हो, लाइक इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, ये चीज बहुत बार ऑलरेडी हो चुकी है,
मतलब पास्ट में कई बार हो चुकी है और अभी प्रेजेंट में भी हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि यही सेम चीज बहुत बार हो चुकी है। सो वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मेनी टाइम्स, हम इस प्लेस पे कई बार आ चुके हैं, मतलब इस प्लेस पे हम पहले भी जा चुके हैं और अभी भी हम इस प्लेस पे आ चुके हैं। क्लियर? तो चुका है, चुके हैं, ये सब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी कैन यूज। एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, बहुत ही नियरेस्ट रिसेंट पास्ट में हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मतलब मैंने अभी अभी काम कंप्लीट किया है। आई हैव जस्ट ईटेन, मैंने जस्ट अभी अभी खाया है, खा चुका हूँ। Now there are some words that we can use in this tense और you can easily recognize अगर ये word आपके sentences में है कि this sense is belongs to present perfect tense. Clear? Just, like, just, yet, ever, never, before, already, recently, lately, for, since. So these words are used in this tense. Clear? So now see some sentences, positive, negative और interrogative sentences. तो basically ये part तो हमारा complete हो चुका है। अब कुछ सिर्फ sentences देख लेते हैं। So I have seen. So I के साथ हमने क्या use किया? Have. So I haven't seen और I have not seen. Have I seen? Don't forget to put the question mark. यहाँ question mark नहीं है, but आप question mark लगाना बिल्कुल मत भूलना। Clear? Has, he has seen, he has not seen, he has he seen, she has seen, she hasn't seen, has she seen. It has seen, it hasn't seen, has it seen, we have seen, we haven't seen, have we seen, you have seen, you haven't seen, have you seen, they have seen, they haven't seen, have they seen. Clear? So I hope you all must have understood this tense perfectly. So basically इस टेंस में क्या था कि हम कौन से स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं होगा, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? एंड हैज एंड हैव, टू वर्ब्स का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, हैज एंड हैव, हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? सो दीज आर सम टेंसेस जो हम यहाँ पे यूज करें। सो टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे सेफ।